محبت کا راز ایک جامع مضمون تقریباً الفاظ تعارف محبت ایک ایسا لفظ جس میں انسان کی زندگی کے خوشی غم جدوجہد اور سکون کے کئی رنگ پوشیدہ آؤ ہر زبان ہر تہذیب اور ہر دل نے محبت کو اپنا مرکزی موضوع مانا کیا کوئی جذبات کا اظہار نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی سوچ اخلاق روئی اور زندگی کے فیصلوں کو بدل دیتا ہے اس مضمون کا مقصد محبت کے اس راز کو کھولنا ہے کہ محبت کیا ہے اس کی اقسام اور ہنر برقرار رکھنے کے طریقے کیا ہیں اور وہ اصول کون سے ہیں جو محبت کو مضبوط اور دیرپا بناتے ہیں محبت کی طریق دل دماغ اور روح کا ملاپ محبت صرف دل کا جوش نہیں اور نہ ہی صرف جسمانی کششیں تین سطحوں پر ظاہر ہوتی ہیں جذباتی دل عقلی دماغ اور روحانی روح جذباتی محبت میں ہم کسی کے لیے نرم دلی شفقت اور وابستگی محسوس کرتے ہیں عقلی محبت میں احترام سمجھداری اور مشترکہ فیصلے شامل ہوتے اور روحان محبت میں ہم اپنے آپ سے آگے نکل کر دوسروں کے لیے بے لوث رغبت محسوس کرتے ہیں چاہے وہ انسانی ہو فطرت ہو یا خدا کے لیے ہو جب یہ تینوں ایک ساتھ ہوں تو محبت کا حسن اور پختگی آتی ہے محبت کی اقسام محبت کے رنگ کئی ہیں والدین کی محبت بچے کی محبت رفاقت دوستی رومانوی عشق اور روحانی عشق وغیرہ ہر قسم کا اپنا مزاج اور تقاضے ہوتے ہیں والدین کی محبت بے لوث تحفظ دینے والی قربانی پر مشتمل دوست اعتماد ہنسی مذاق رازداری اور ایک دوسرے کی ہمات رومانو محبت خواہش قربت جسمانی اور جذباتی قربت کا امتزاج روحانی محبت خدا کائنات کے ساتھ گہرے تعلق کی کیفیت جو انسان کو بلند نظری دیتی ہے خود سے محبت اپنی قدر حدود اور ضروریات کا احترام یہ تمام محبتوں کی بنیاد ہے محبت کا نفسیاتی پس منظر جدید نفسیات بتاتی ہے کہ محبت انسانی روئی دماغی کیمیا اور سماجی رابطوں کا نتیجہ ہے جب ہم کسی کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آکسیٹوسن ڈوپامین اور سیروٹونن جیسے کیمیائی مادی آزاد ہوتے ہیں یہ مادی ہمیں خوشی اعتماد اور وابستگی کا احساس دیتے ہیں مگر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ صرف کماعت محبت کی حقیقت نہیں اس کے پیچھے یادیں رسم و رواج زبان اور انتخاب بھی کار فرما ہوتے ہیں آؤ محبت کا مذہبی و ادبی نقطۂ نظر اسلام عیسائیت ہندومت اور دیگر مذاہب میں محبت کو مرکزی مقام حاصل قرآن و حدیث میں اللہ کی محبت رسول کی محبت اور انسانوں کے درمیان محبت کی اہمیت بارہا بیان ہوئی ہے صوفیاء کرام نے عشق کو معرفت کا دروازہ قرار دیا عشق حقیقی انسان کو خودی سے نکال کر خدا تک لے جاتا ہے اردو ادب میں عشق کو راز و نیاز درد دل اور حسن کائنات کے انداز میں بیان کیا گیا ہے غالب میر بہادر اور دیگر شاعر یہی دکھاتے ہیں کہ محبت انسان کو الگ انداز سے دیکھنے کی طاقت دیتی ہے محبت کے بنیادی عناصر انگریڈینٹس آف لو محبت ایک فن ہے سیکھا جا سکتا ہے اور نبھایا جا سکتا ہے درج ذیل عناصر کسی بھی رشتے میں محبت کو قائم رکھتے ہیں ایک اعتماد ٹرسٹ محبت کی بنیاد اعتماد ہے بغیر اعتماد کے رشتہ لرزم رہتا ہے اعتماد بنانے کے لیے ایمانداری وعدوں پر عمل اور شفافیت ضروری ہے دو احترام رسپیکٹ ایک دوسرے کی رائے حدود اور شخصیت کا احترام ہر محبت کو سنوارتا ہے اختلاف رائے آئے تو بھی ادب کے ساتھ گفتگو ضروری ہے تین مواصلت کمیونیکیشن کھلے دل سے بات کرنا خوشی غم توقعات اور خوف کا اظہار رشتے کو مضبوط کرتا ہے خاموش اکثر غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے چار قربت اور وقت کوالٹی ٹائم مصروفیات کے باوجود ساتھ وقت گزارنا مشترکہ یادیں بنانا محبت کو بڑھاتا ہے پانچ قربانی سیکریفائس اور سمجھوتا کمپرومائز ہر رشتے میں کبھی نہ کبھی خود کو پس پشت ڈال کر دوسرے کی خوشی کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے مگر یہ توازن ضروری ہے قربانی اپنی عزت اور صحت کو نقصان نہ پہنچائے وفا و مستقل مزاجی کمٹمنٹ وعدہ نبھانا مشکل وقت میں کھڑا رہنا رشتے کو دیرپا بناتا ہے ساتھ خود سے محبت اگر خود سے محبت نہیں کرتے تو دوسروں کو صحت مند طریقے سے محبت نہیں دے سکتے اپنے جسم ذہن اور روح کا خیال رکھیں محبت اور حدود باؤنڈریز محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چیز برداشت کریں صحت مند محبت میں حدود کا تعین ضروری ہے جنازہ خلا مالی حل و فصل اور سماجی حدود شامل ہیں حدود نہ ہونے سے استحصال ہی صدق اور اضطراب جنم لیتا حدود کا احترام رشتے کو محفوظ بناتا ہے محبت میں مسائل اور ان کا حل ہر رشتے میں اوقات ناخوشگوار بھی آتے ہیں کچھ عام مسائل اور ان کے ممکنہ حل غلط فہمیاں اکثر بنیادی وجہ غیر مؤثر گفتگو ہوتی ہے حل
खामोशी तोड़ें, जज्बात का एहतराम करें और आमीन के जुमले इस्तेमाल करें, जैसे मुझे महसूस होता है कि एतमाद का टूट जाना। अगर एतमाद टूट जाए तो शर्मिंदगी, मुआफ़ी और वक्त दरकार होते हैं। गलती कबूल करें, शफाफ रहें और छोटे वादे करके उन्हें पूरा करें। वक्त की कमी, मसरूफ जिंदगी में अगर साथ का वक्त ना मिले तो रिश्ता ठंडा पड़ जाता है। रोजाना कम अज कम चंद मिनट का मेयार वाला वक्त तय करें। गुफ्तगू, हंसी या साथ खाना, रूटीन और यकनवाखती। मोहब्बत में जोश और रोमानिये को बरकरार रखने के लिए छोटे सरप्राइज, मुश्तरका मशागिल और नए तजर्बे जरूरी हैं। हसद और मुकाबलाबाजी ये ताल्लुकात में जहर घोलते आए। एतमाद और खुद एतमादी बढ़ाएं और मुकाबलाबाजी के बजाय एक दूसरे की कामयाबियों का जश्न मनाएं। मोहब्बत को कैसे परवान चढ़ाएं? अमली मशवरे। मोहब्बत को राज समझ कर छुपाना नहीं बल्कि रोजमर्रा की मशकों से परवान चढ़ाया जा सकता है। एक, रोजाना शुक्रिया अदा करें। छोटी छोटी बातों का शुक्र अदा करना, जैसे साथ के लिए खाना बनाना या मुस्कुराहट देना, ताल्लुकात को मजबूत करता है। 2, सुनने का फिन सीखें। महज सुनना नहीं बल्कि समझने की कोशिश कर सवाल करें और राय को दोहराएं ताकि सामने वाले को महसूस हो कि अपने समझे। 3, छोटे तोहफे और आवाजें। अल्फाज और लम्स दोनों अहम आवाक पैगाम, एक तोहफा एक गिले मलना मोहब्बत के इजहार के मुअस्सर अंदाज हैं। 4, मुश्तरका मकासद मुरतब करें। जिंदगी के बड़े फैसले माली डॉक्यूमेंट्री, बच्चों की परवरिश, उन पर मुश्तरका मंसूबा बंदी मोहब्बत को ताकत देती है। 5, मुआफ करने की सलाहियत। इंसान गलतियां करते हैं, मुआफ करना एक ताकत है जो ताल्लुक को आज़ाद करती है, मगर फ़र्क ये भी समझें कि कुछ चीज़ें दोबारा बर्दाश्त करना नुकसानदेह हो सकती हैं। 6, खुद को बेहतर बनाएं। हर फर्द में ज़ाती तरक्की रिश्ते के मेयार को बुलंद करती है। तालीम, सेहत, जज्बाती बालिगपन ज़रूरी आओ। महबत में पायदारी एक फ़लसफ़ा। मोहब्बत वक्ती जोश से ज़्यादा एक अज़्म है। रिश्ते में उतार चढ़ाव आएंगे मगर मुस्तकिल मिजाजी वक़ार और एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना मोहब्बत को पायदार बनाता है। हकीकी मोहब्बत वो है जो मुश्किल हालात में भी कायम रहे। जब फसाने ख़त्म हो जाएं तो वो रोज़मर्रा की मुश्तरका खिदमत में बदल जाए। मोहब्बत और रिश्तों की तरमीम, ग्रोथ एंड चेंज। इंसान बदलता है, यही हकीकत है। मोहब्बत का राज इस तब्दीली के साथ चलने में है। अगर दो लोग एक ही रफ्तार से बदलते हैं तो अच्छा है, मगर अगर रफ्तार मुख्तलिफ हो तो गुफ्तगू, समझौता और कभी अलहदगी बेहतर इंतखाब हो सकती है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप अपनी शनाख्त खो दें, बल्कि ये है कि आप एक दूसरे की नश्वोनुमा में शरीक हों। मुख्तसर कहानी, एक अमली मंजरनामा। आसिफ और सारा की मीन साल ले। दोनों शादी के इब्तिदाई सालों में शदीद मोहब्बत में मुब्तला थे। वक्त के साथ काम का दबाव और बच्चे की पैदाइश ने ताल्लुकात में फासला पैदा किया। सारा को लगा आसिफ इसका ख्याल नहीं रखता और आसिफ समझता था कि सारा इसकी तारीफ नहीं करती। मुश्किल बढ़ते देखकर दोनों ने हफ्तावार इबादत करने का वक्त तय किया। इस दौरान एहसासात खिले रखे गए, अहदाफ मुरतब किए गए और घर के छोटे काम बराबर बांटे गए। हंसता आहिस्ता एतमाद बहाल हुआ। ये कहानी बताती है कि महज मोहब्बत का होना काफी नहीं, मोहब्बत को वक्त, ख्याल और हिकमत अमली की जरूरत होती है। मोहब्बत का इखलाकी पहलू, मोहब्बत का एक इखलाकी रुख भी है। मोहब्बत हमें दूसरों के लिए जिम्मेदार बनाती है। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो इसके दुख में शरीक होते हैं, इसकी इस्लाह चाहते हैं और उसकी आज़ादी का एहतराम करते हैं। मोहब्बत का अखलाक ये सिखाता है कि दूसरे की इज्जत और अपनी इज्जत दोनों का ख्याल रखा जाए। जालिम मोहब्बत नहीं है और न ही गुलामी मोहब्बत है। मोहब्बत और खुद शनासी मोहब्बत इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। जब आप किसी से गहरी वाबस्तगी महसूस करते हैं तो आपको अपनी कमजोरियां, खौफ और ख्वाहिशात का सामना करना पड़ता है। शनासी आपको बेहतर इंसान बनाती है और मोहब्बत को ज्यादा पुख्ता बनाती है। इख्तिताम और अमली खुलासा, मोहब्बत का राज दरअसल एक जामे हुआ इंसानियत, एहतराम, कुर्बानी, समझौता, खुद की कदर और मुस्तकिल मिजाजी। मोहब्बत सिर्फ रूमानी गीतों, आशिरों में नहीं बनता, ये हर रोज की छोटी कोशिशों, ईमानदारी और हमदर्दी का नतीजा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत पायदार और खुशगवार रहे तो मुंदरजा झैल उसूल याद रखें। 1, अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी ज़रूरियात को पहचानें। 2, ईमानदार और खुले दिल से बात करें। 3, एतमाद बनाएं और उसका ख्याल रखें। 4, एक दूसरे का एहतराम करें और हुदूद का तयन करें। 5, मुआफ़ करना सीखें मगर अपनी इज्जत बरकरार रखें। 6, मुश्तरका वक्त निकाली और मुश्तरका यादें बनाएं।
तब्दीली को कबूल करें और साथ बढ़ने की कोशिश करें। मोहब्बत एक राज नहीं बल्कि एक मशक, एक इंतखाब और एक अहद है। जब ये अहद दोनों फरीकैन दिल से निभाएं तो मोहब्बत रोशनी बनकर जिंदगी अंधेरों को रोशन कर देती है। याद रखें, मोहब्बत में सबसे बड़ा हुनर यह है कि आप हर दिन नए सिरे से चाहें। इसी तसलसल में मोहब्बत हमेशा जवाब रहती है। मोहब्बत का राज ये एक ऐसा मौजू है जिसने सदियों से शुअरा, फलसफी, मुफक्किरीन और आम आदमी सबको अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है। हर दूर ने मोहब्बत को अपने अंदाज में समझने की कोशिश की है। असल राज अक्सर पोशीदा रह गया। ये मजमून मोहब्बत के मुख्तलिफ पहलुओं, इसकी हकीकत, इसके फ़वाइद व नुकसानात और अमली अंदाज में ज़िंदगी पर मबनी तजावीज़ पर मुश्तमिल मुनक़स्द ये है कि मोहब्बत सिर्फ एक जज्बाती कैफियत और रोमांटिक खेल के बजाय एक मुकम्मल इंसानी तजुर्बे के तौर पर समझा जा। इस राज को सामने लाया जाए जो ताल्लुकात को मजबूत बनाता है, इंसान को बेहतर बनाता है और जिंदगी को मानी अता करता है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत का लफ्ज़ सुनने में आसान लगता है मगर उसकी तारीफ करना इतना ही मुश्किल है जितना हुआ का रुख बताना। आमतौर पर मोहब्बत को दो बड़े ज़ावियों से देखा जाता है। एक सच्ची, बेगर्ज और मजबूत मोहब्बत जो कुर्बानी, समझौते और एहतराम पर मबनी होती है। दूसरा खुद गरज, वक्ती और रोमांटिक मोहब्बत जो जुनून, ख्वाहिश और ख्वाबों से मुतासिर होती है। सच्ची मोहब्बत वो है जो वक्त के साथ बढ़ती है, मसाइल में साबित कदम रहती है और एक दूसरे की कमजोरी को कबूल करती है। ये सिर्फ खुशी के लम्हात में साथ नहीं रहती बल्कि मुसीबत, बीमारी, नाकामी और बदहवासी के वक्त भी साथ निभाती ही। महबूब का नफ्सियाती और मुआशरती पहलू। मोहब्बत सिर्फ दो अफराद के दरमियान का रब्त नहीं, ये एक नफ्सियाती ज़रूरत भी है। इंसान बुनियादी तौर पर एक इज्तिमाई मखलूक है। हमें ताल्लुक, कबूलियत और हिफाजत की ज़रूरत होती है। मोहब्बत हमें खुद एतमादी देती है, जज्बाती इस्तेहकाम फराहम करती है और नफ्सियाती सुकून का सबब बनती है। मुआशरत तौर पर मोहब्बत वो बुनियाद है जिस पर ख़ानदान बनता है, समाज मजबूत होता है और नस्लें एक दूसरे के साथ जड़ी रहती। महबूब के बगैर इंसान का शऊर तन्हा रह जाता है, जिससे इज़्तिराब, उदासी और बैरूनी ताल्लुकात में मसाइल पैदा होते हैं। मोहब्बत और एहतराम लाज़मी शराकतदार। मोहब्बत जब तक एहतराम के साथ नहीं होती अधूरी रहती है। एहतराम का मतलब सिर्फ अल्फाज की नज़ाकत नहीं बल्कि दूसरे इंसान की ज़ाती हुदूद, फैसले, एहसासात और इंतखाब का एहतराम भी है। अगर किसी ताल्लुक में मोहब्बत तो हो मगर एहतराम ना हो तो वो मोहब्बत जल्द ही जहर बन सकती है। काबू करने की कोशिश, गुस्सा, नीची निगाह और तहक़ीर ताल्लुकात को तबाह कर देती है। सच्ची मोहब्बत वो है जिसमें दोनों फरीक एक दूसरे की इज्जत करें, इख्तिलाफात को बर्दाश्त करें और हर किसी की इनफरादियत को कबूल करें। मोहब्बत का राज सुनने और समझने की कुव्वत। बुनियादी राज ये है, मोहब्बत का सबसे मजबूत जिज़्व संजीदा तौर पर सुनना और गहरी समझे ही संजीदा सुनना। इसका मतलब महज खामोश रहना नहीं बल्कि दिल और दिमाग के साथ सुनना है। जब आप अपने शरकन हयात दोस्त की बात पूरी तवज्जो से सुनते हैं तो वो महसूस करता है कि वो अहम है। ये छोटी सी आदत रिश्तों में जाने वाले फासले को मिटाती है। गहरी समझ। हर इंसान की कहानी मुख्तलिफ होती है। इसकी खामोशी इसके अंदर के दर्द की अक्कासी कर सकती है। किसी की चिड़चिड़ापन उनके खौफ आमाजी के जख्मों का नतीजा हो सकता है। मोहब्बत का राज है कि हम सतह से आगे जाकर दूसरे की दुनिया में कदम रखें और उसके तजुर्बात, खौफ और उम्मीदों को समझने की कोशिश करां। मोहब्बत की टांग। मोहब्बत एतमाद के बगैर मुमकिन नहीं। एतमाद वो बुनियादी सुकून है जिस पर ताल्लुकात खड़े होते हैं। जब आप अपने साथी को मोतबर, ईमानदार और काबिल भरोसा समझते हैं तो रिश्ता मजबूत रहता है। एतमाद बनाने के लिए ईमानदारी, वादों की पासदारी और शफाफियत ज़रूरी है। गलत बयानी, छुपाने और धोखा देने से एतमाद टूटता है और दोबारा जोड़ने में बहुत वक्त मेहनत लगती है। महबूब का अमली इजहार। मोहब्बत को सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि अमल में भी जाहिर करना ज़रूरी है। अमली इजहार के चंद तरीके: एक, रोज़मर्रा की तवज्जो, छोटी चीज़ें, एक पैगाम, चाय बनाना, हाथ पकड़ना ताल्लुक़ को मजबूत बनाती है। दो, मदद और हिमायत, मुश्किल वक्त में साथ देना, जज्बाती और अमली मदद फराहम करना। तीन, तारीफ और कदर, खूबसूरत बातों की तारीफ करें, शुक्रिया कहना ना बेदिल। चार, मुआफ़ करना, गलतियों के बाद रिश्तों को ख़त्म करना आसान है मगर मोहब्बत में मुआफ़ी का बड़ा किरदार होता है। मोहब्बत और हुदूद, बाउंड्रीज। हुदूद का होना मोहब्बत के लिए ज़रूरी है। हर फर्द की ज़ाती जगह, ज़ाती वक्त और ज़ाती नज़रियात होते हैं। अगर हुदूद का
एहतराम न किया जाए तो मोहब्बत दब जाती। हदूद का मतलब दूरी असरदी नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां दोनों फरीक अपनी शनाख्त को बरकरार रख सकें। हदूद का एहतराम मोहब्बत को सेहतमंद बनाता है और दोनों अफराद को आज़ादाना तौर पर बेहतर बनने की जगह देता ही। मोहब्बत का सीखा हुआ पहलू बहुत से लोग मोहब्बत को फितरी फर्ज करते हैं, मोहब्बत खुद ब खुद हो जाएगी, मगर हकीकत यह है कि मोहब्बत एक हुनर भी है जो सीखा जा सकता है। ताल्लुकात संभालने का हुनर, सुनने का फ़न, जज्बात का इजहार और तनाज़ात को हल करने की तालीम और अमली मेहनत के ज़रिए इंसान अपने ताल्लुकात में बेहतरी ला सकता है। किताबें पढ़ना, मुशावरत हासिल करना और खुद एहतिसाबी करना मोहब्बत के हुनर को बेहतर बनाते हैं। मोहब्बत में तज़ादात और हकीकतें। मोहब्बत के अंदर कई तज़ादात पोशीदा होते हैं। आज़ादी बमुकाबला वाबस्तगी, खुदी बमुकाबला कुर्बानी, अमन बमुकाबला जुनून, आज़ादी बमुकाबला वाबस्तगी। मोहब्बत में दोनों का तवाज़ुन ज़रूरी है। ज़्यादा वाबस्तगी खफगी पैदा करती है और ज़्यादा आज़ादी रिश्ते को सर्द कर देती है। खुद बमुकाबला कुर्बानी। मोहब्बत में खुदी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना दुरुस्त नहीं बल्कि अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए कुर्बानी देना बेहतर है। तज़ादात मोहब्बत के पेचीदा रंग हैं। राज ये है कि तवाज़ुन बरकरार रखा जाए, एक ऐसा बैलेंस जिसमें दोनों अफराद अपनी शनाख्त भी बरकरार रखें और एक दूसरे की खुशियों और ज़रूरियात का ख्याल भी रखें। मोहब्बत और वक्त मोहब्बत का इम्तिहान है। इब्तिदाई जोश और खुरूश अक्सर वक्त के साथ कम हो जाता है, मगर सच्ची मोहब्बत में ये कमज़ोरी नई शक्ल में बदल जाती है। गहरी हम आहंगी, मुश्तरका यादें और एक दूसरे की आदतें। वक्त के साथ मोहब्बत में एहतराम, तहम्मुल और कुर्बानी आती है। जुड़े जो वक्त को एक उस्ताद समझते हैं वो अपने रिश्तों में पुख्तगी लाते हैं। मोहब्बत की ज़ुबानें। गेरी चावज़न और कैम पाज़क के मुताबिक मोहब्बत की मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं। अल्फाज़न तस्दीक, कैफियती वक्त, तहाइफ, खिदमात और जिस्मानी क़ुर्बत। हर शख्स की एक ज़्यादा मोहब्बत की ज़ुबान होती है। अगर आप अपने शरकन हयात की मोहब्बत की ज़ुबान को समझ लें तो आप रवाबित को बेहतर अंदाज में बरकरार रख सकते हैं। मसलन अगर किसी के लिए मवान वक्त अहम है तो सिर्फ मोबाइल कॉल्स ही मोहब्बत का इजहार नहीं, साथ बैठकर बाआराम गुफ्तगू करना ज़्यादा मानी रखता है। मोहब्बत में गलत फहमियाँ, उनका इलाज अक्सर छूटी गलत फहमियाँ बड़े शदत इख्तियार कर लेती। इलाज ये है तनाज़ो को वक्ती ना होने दें, मगर उसका मतलब फ़ौरन हल करने की जल्दबाजी भी ना। मुनासिब वक्त और तहम्मुल के साथ मौजू अटे दूसरों की बात को फ़र्ज़ी अंदाज में ना लें। अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार शफाफ रखें। मुआफ़ी और समझौते की सलाहियत पैदा कर महबूत और खुदी। सच्ची मोहब्बत में खुदी का ख्याल अहम है। अपनी अब से मोहब्बत किए बगैर आप दूसरे से मुकम्मल तौर पर मोहब्बत नहीं कर सकते। खुदी का मतलब खुद गर्जी नहीं बल्कि अपनी ज़रूरतों, हुदूद और जज्बात का एहतराम है। अपनी अब से मोहब्बत करने वाला फ़र्द ज़्यादा मुस्तहकम, ज़्यादा हमदर्द और दूसरों के लिए ज़्यादा फराहम करने वाला होता है। मीम हब के मजहबी और रूहानी पहलू। मुख्तलिफ मज़ाहिब और रूहानी रवायात में मोहब्बत को बहुत अहम मकाम दिया गया है। मोहब्बत को इंसान का खुदा से, इंसानों से और ख़ुद से रब्त समझा गया ही। रूहानी मोहब्बत में कुर्बानी, खिदमत और बेगर्जी का बड़ा किरदार है। रूहानी नुक्ताए नज़र से मोहब्बत का राज ये है कि इंसान दूसरों में अल्लाह की अलामत देखे। इस नज़रिए से मोहब्बत में एक मुक़द्दस एहतराम और बर्दाश्त आती ही। महबूत का अमली खुलासा चंद उसूल। 1. सुने और समझी, सुनकर समझना मोहब्बत की कुंजी है। 2. एतमाद बनाएं, सच्चाई और शफाफियत से एतमाद कायम होता है। 3. एहतराम बरकरार रखें, एहतराम के बगैर मोहब्बत जहरीला बन सकती है। 4. रोज़मर्रा छोटे हरकत मोहब्बत को जिंदा रखती हैं। हुदूद का एहतराम, हर किसी को अपनी जगह और शनाख्त चाहिए होती है। 6. खुद से मोहब्बत, महापन, ज़रूरियात और जज्बात का ख्याल रखें। 7. मुआफ़ करना सीखें, गलतियाँ इंसान से होती हैं, मुआफ़ी रिश्ता बचाती है। 8. मुसलसल मेहनत, मोहब्बत खुद ब खुद बरकरार नहीं रहती, इसके लिए मेहनत दरकार है। नतीजा मोहब्बत कोई सादा जज्बा नहीं, ये एक मुसलसल इंतखाब, एक मश्क और एक फ़लसफ़ान ज़िंदगी ही। महबूत का राज सतही रूमानी इजहार में नहीं बल्कि ये गहरी समझ, एहतराम, एतमाद और मुसलसल मेहनत में पोशीदा है। जब हम मोहब्बत को सिर्फ खुशी के लम्हों तक महदूद नहीं रखते बल्कि रोज़मर्रा के कामों, छूटी नज़रअंदाज़ों, मुआफ़ी और एक दूसरे की कदर में बदल देते हैं तो वो रिश्ता मज़बूत, वफ़ादार और बामानी बन जाता है। ये राज हर किसी के लिए मुख्तलिफ अंदाज में जलवागर हो सकता है मगर बुनियादी उसूल यकसां है।
دھیان کا احترام، سمجھ بوجھ اور مسلسل کوشش، اگر ہم ان اصول پر عمل کریں تو محبت نہ صرف ہمارے تعلقات کو بدل دے گی بلکہ ہماری زندگی کا مقصد اور معنی بھی روشن کر دے گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مزید مختصر خلاصے، ضمن سوال و جواب کے انداز آپ بچوں کے لیے آسان زبان میں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ محبت کا راز، ایک جامع مضمون، تقریباً الفاظ۔ تعارف: محبت ایک ایسا لفظ جس نے انسان کی زندگی کے خوشی، غم، جدوجہد اور سکون کے کئی رنگ پوشیدہ، ہر زبان، ہر تہذیب اور ہر دل نے محبت کو اپنا مرکزی موضوع مانا کیا۔ کوئی جذبات کا اظہار نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی سوچ، اخلاق، روی اور زندگی کے فیصلوں کو بدل دیتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد محبت کے اس راز کو کھولنا ہے کہ محبت کیا ہے، اس کی اقسام اور حنن برقرار رکھنے کے طریقے کیا ہیں، اور وہ اصول کون سے ہیں جو محبت کو مضبوط اور دیرپا بناتے ہیں۔ محبت کی تعریف: دل، دماغ اور روح کا ملاپ۔ محبت صرف دل کا جوش نہیں اور نہ ہی صرف جسمانی کششیں، تین سطحوں پر ظاہر ہوتی ہے: جذباتی، دل، عقلی، دماغ اور روحانی۔ جذباتی محبت میں ہم کسی کے لیے نرم دلی، شفقت اور وابستگی محسوس کرتے ہیں۔ عقلی محبت میں احترام، سمجھداری اور مشترکہ فیصلے شامل ہوتے ہیں۔ روحانی محبت میں ہم اپنے آپ سے آگے نکل کر دوسروں کے لیے بے لوث رغبت محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ انسانی ہو، فطرت ہو یا خدا کے لیے ہو۔ جب یہ تینوں ایک ساتھ ہوں تو محبت کا حسن اور پختگی آتی ہے۔ محبت کی اقسام: محبت کے رنگ کئی ہیں۔ والدین کی محبت، بچے کی محبت، رفاقت، دوستی، رومانوی عشق اور روحانی عشق وغیرہ۔ ہر قسم کا اپنا مزاج اور تقاضے ہوتے ہیں۔ والدین کی محبت بے لوث تحفظ دینے والی، قربانی پر مشتمل، دوست، اعتماد، ہنسی مذاق، رازداری اور ایک دوسرے کی حمایت۔ رومانو محبت، خواہش، قربت، جسمانی اور جذباتی قربت کا امتزاج۔ روحانی محبت، خدا کائنات کے ساتھ گہرے تعلق کی کیفیت جو انسان کو بلند نظری دیتی ہے۔ خود سے محبت، اپنی قدر، حدود اور ضروریات کا احترام، یہ تمام محبتوں کی بنیاد ہے۔ محبت کا نفسیاتی پس منظر: جدید نفسیات بتاتی ہے کہ محبت انسانی روئی، دماغی کیمیا اور سماجی رابطوں کا نتیجہ ہے۔ جب ہم کسی کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آکسیٹوسن، ڈوپامین اور سیروٹونن جیسے کیمیائی مادے آزاد ہوتے ہیں۔ یہی مادے ہمیں خوشی، اعتماد اور وابستگی کا احساس دیتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ صرف کماعت محبت کی حقیقت نہیں، اس کے پیچھے یادیں، رسم و رواج، زبان اور انتخاب بھی کارفرما ہوتے ہیں۔ محبت کا مذہبی و ادبی نقطۂ نظر: اسلام، عیسائیت، ہندومت اور دیگر مذاہب میں محبت کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور انسانوں کے درمیان محبت کی اہمیت بارہا بیان ہوئی ہے۔ صوفیاء کرام نے عشق کو معرفت کا دروازہ قرار دیا۔ عشق حقیقی انسان کو خودی سے نکال کر خدا تک لے جاتا ہے۔ اردو ادب میں عشق کو راز و نیاز، درد دل اور حسن کائنات کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ غالب، میر بہادر اور دیگر شاعر یہی دکھاتے ہیں کہ محبت انسان کو الگ انداز سے دیکھنے کی طاقت دیتی ہے۔ محبت کے بنیادی عناصر: انگریڈینٹس آف لو: محبت ایک فن ہے، سیکھا جا سکتا ہے اور نبھایا جا سکتا ہے۔ درج ذیل عناصر کسی بھی رشتے میں محبت کو قائم رکھتے ہیں۔ ایک، اعتماد، ٹرسٹ، محبت کی بنیاد اعتماد ہے۔ بغیر اعتماد کے رشتہ لرزن رہتا ہے۔ اعتماد بنانے کے لیے ایمانداری، وعدوں پر عمل اور شفافیت ضروری ہے۔ دو، احترام، رسپیکٹ، ایک دوسرے کی رائے